ہر دکھ کی دوا لے کر رمضان آ گیا ہے، ہونٹوں پہ دعا لے کر رمضان آ گیا ہے، روزے کی تازگی سے چہرے کھلے ملیں گے، جنت کی ہوا لے کر رمضان آ گیا ہے۔ آداب ناظرین، رمضان کا وہ مبارک مہینہ آ چکا ہے جسے ہم رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ کہتے ہیں۔ یوں تو ہم سبھی آج رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ رمضان کی رحمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ در حقیقت رجب ماہ سے ہی رمضان کا انتظار شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی دعاؤں میں ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک تو اس رجب کے مہینے کو شعبان سے ملا اور شعبان کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے ملا دے۔ شعبان گزر گیا ہے، رمضان میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ 30 دن عبادت اور ریاضت کے دن ہیں۔ یہ 30 دن آپ کے لیے دین کے ریویژن کے دن ہیں۔ یہ 30 دن آپ کو اپنی نفس پر نہ صرف قابو رکھنا ہے، بلکہ آپ کو کھانے پینے سے بھی خود کو بچانا ہے، ہر اس غلط کام سے خود کو بچانا ہے جس کو آپ اگلے 11 مہینے تک خود پر حاوی رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ نیک بن سکیں۔ اور یہ رمضان، کیونکہ ہم ہندوستان جیسے عظیم الشان ملک میں اس مہینے کو ہم اپنے اوپر حاوی کریں گے، تو اس ملک کی ایک اپنی الگ روایات ہیں، ایک گنگا جمنی تہذیب ہے اس ملک کی، جس میں لوگ ایک دوسرے کے مذاہب کی، ایک دوسرے کی تہواروں کی عزت کرتے ہیں، انہیں وقار بخشتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان روزے سے ہوتا ہے تو اس کا ہندو پڑوسی، ہندو اس کے دوست احباب بھی اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سامنے کچھ کھائیں نہ پئیں۔ یہ وہ ہندوستان ہے جو آپسی محبت، بھائی چارے اور اخوت کا پیغام دیتا ہے تمام دنیا کو۔ تو جب ہم رمضان میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمارے درمیان 5 اہم شخصیات یہاں پر موجود ہیں جن سے ہم رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے بات کریں گے، ہندوستانیت کے حوالے سے بات کریں گے، آپسی محبت اور بھائی چارے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم رمضان میں کس طریقے سے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائیں جن کے لیے منع کیا گیا ہے، اس پر غور و فکر ہوگا۔ کچھ ہماری جسمانی کمزوریاں ہیں، بیماریاں ہیں، اس کو بھی رکھتے ہوئے ہم کس طرح روزے رکھ سکتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے اس پر بھی ہم غور کریں گے۔ ہمارے درمیان 5 اہم شخصیات موجود ہیں، آئیے میں ان سے آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں الشفا ہاسپٹل کے کنسلٹنٹ میڈیسن ڈاکٹر فراز الاسلام صاحب، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ RML ہاسپٹل میں بھی رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور ہمارے درمیان موجود ہیں اسپریچول گرو سوامی دیپانکر مہاراج صاحب، ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہے کہ روزے اور اپواس کو لے کر سوامی جی کی جو سوچ ہے، وہ آدھیاتمک چنتن جو ہے، اس کی آج ملک کو بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم ان سے بھی اس پر بات کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں مولانا رضی اللہ عبد الکریم صاحب، ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے ناظم تعلیم ہیں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان موجود ہیں شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ کے امام مولانا محسن تقوی صاحب، ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت آواز موجود ہے جناب یوسف نظامی صاحب کی، ہم ان کا بھی اس میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور پروگرام کا آغاز ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک حمد سے کریں۔ یوسف نظامی صاحب۔ رمضان کا مہینہ آیا، رحمت کا قرینہ آیا، ایمان کا قرینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، فرماتے ہیں شاہ مدینہ، فرماتے ہیں شاہ مدینہ، رحمت ہے رمضان کا مہینہ، سننے کو شبینہ آیا، سننے کو شبینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، جتنی کرو رمضان میں عبادت، چمکے گی ہر مومن کی قسمت، سننے کو شبینہ آیا،
سننے کو شبینہ آیا رمضان کا مہینہ آیا رمضان کا مہینہ آیا رمضان کا مہینہ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں دیکھیے میرے لیے تمام بہت آپ لوگ معتبر اور بہت ہی معزز ہیں. سوامی دیپانکر مہاراج جی آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا. جیسے انہوں نے کہا رمضان کا مہینہ آیا. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جو مسلمان ہیں ہم سب لوگ جو ہیں وہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ہم لوگ جو ہیں روزے کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنے لگتے ہیں اور خدا کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے لگتے ہیں. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے اس دوران میں ہم لوگوں کو دیکھ کر؟ تحسین بھائی، جب میں دیکھتا ہوں رمضان کے مہینے میں ہم سے ملنے والے ہمارے جتنے بھی بھائی بندھو ہیں، مسلم بھائی ہیں، میں سمجھتا ہوں انہیں، میں ان کے فیس کو ریڈ کرتا ہوں. اس سمے میں چلنے والے چنتن کو سوچتا ہوں کہ کیا سوچ رہے ہوں گے. یقین مانیے جب اس بارے میں چرچا ہوئی کہ کل مجھے یہاں آنا ہے، میں رات میں سوچ رہا تھا کہ رمضان ارتھ کیا، میں یہ سوچنے کا پریتن کر رہا تھا. تو جو میں سمجھ پایا کہ اس ماہ میں ہی نہیں، اس ماہ سے شکشا لے کر جو سوئم کو روح میں تعمیل کر کر اس میں رما دے سو رمضان. واہ میں جو سمجھ پایا. واہ. ہم لوگ اپواس رکھتے ہیں. اپ کا ارتھ ہوتا ہے دوسرا، کہ اپواس ارتھ یہ نہیں کہ آپ برت سے رہیں، اپواس ارتھارت آپ دوسرے میں نہ ہو کر سوئم میں اپنے آپ کو محسوس کرنے کو میں اپواس کہتا ہوں. تو ارتھ کہنے کا یہ ہے، میں سمجھنے کا پریتن کرتا ہوں کہ اس شن میں انسان سوچ کیا رہا ہے، اور گر اس شن میں بھی، یا یہ کہوں کہ اس ایک ماہ میں بھی میں خود کو سمجھنے میں گر ناکام رہتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس جیون میں میرا جیون کو لینا چنتنیہ ہے، سوچنیہ ہے. اور مجھے سمجھنا چاہیے کہ لائف سب کو ایک بار ہے. اور میں پڑھ رہا تھا، میں بہت حالانکہ کم قرآن پڑھا ہوں، پر جتنا بھی پڑھا ہوں، کہ قیامت کی رات میں یہ پوہے بھی آنسر دیں گے ان کی غلطیوں کا. تو کیوں نہ جس نے نہیں کیا وہ اس ماہ سے شروعات کرے اپنے آپ کو تراشنے کی، اپنے آپ کو وہاں تک لے کر جانے کی جہاں سے آگے کے راستے سگم ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات کہی ہے دیپانکر مہاراج صاحب نے. یہ جو کہیں سے بھی شروعات کی جا سکتی ہے کیونکہ خدا بہت رحمان و رحیم ہے. اگر آپ سے پیچھے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اس ماہ رمضان سے آپ شروعات کر سکتے ہیں. جس نے بنایا ہے ہمیں وہ جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو. ہمارے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں. ایک تو ہمارا نفس ہے، ہماری خواہشات، اور ایک ہے شیطان. شیطان باہر ہے لیکن نفس ہمارے اندر ہے، اور ہم سال کے 11 مہینے میں مسلسل اپنی خواہشات اور شیطان کے حملوں کا شکار رہتے ہیں، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور جو ہمیں کرنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں، جیسے رہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں، جس طرح سے جیون ہمیں گزارنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو فراموش کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ ہمیں اس لیے دیا کہ یہ تمہارے دو دشمن تھے جن کے مقابلے میں تم بہت کمزور تھے. ہم نے ان دونوں کا انتظام یہ کیا کہ خواہشات پر پابندی لگائی. کھانا نہیں، پینا نہیں، برا بولنا نہیں، گالی نہیں، گلوج نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، اور پھر شیطان کو گرفتار کر لیا گیا. اس مہینے میں شیطان اپنی ساری سرگرمیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب ہمیں اللہ رب العزت نے پوری آزادی دی ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو دوبارہ انسانیت کے چولے میں لا کر اور اس کے صحیح معنی میں بھکت بنو گے، اس کے عبادت گزار بنو گے، اور انسان بن کر انسانیت کو زندہ رکھو گے. اپنے آپ کو بھی، اپنے سماج کو بھی، اپنے ملک کو بھی، سب کو اچھا پیغام ہی نہیں دو گے، اچھا بن کر دکھاؤ گے. محسن تقوی صاحب، شیطان گرفتار ہو گیا ہے، اس کے باوجود جو لوگ شیطانی حرکت کرتے ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں؟ دیکھیں، شیطان ہمارے دل میں ایک بات پیدا کر سکتا ہے کہ ہم گناہ کی طرف جائیں، لیکن گناہ کی طرف جانا یا نہ جانا یہ خود ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ رمضان کے اندر بھی بہت سے لوگ گناہ کر لیتے ہیں، اور
लेकिन मसला यह है कि गुनाह की तरफ जो इंसान जाता है वो जाता क्यों है? वो जाता है अपने नफ्स की कमज़ोरी की बिना के ऊपर, अपने ऊपर कंट्रोल न रख पाने की बिना के ऊपर। इसी वजह से इंसान गुनाह की तरफ जाता है। रमज़ान का महीना हमें इसी चीज़ की तरबियत देता है कि हम अपने नफ्स के ऊपर कितना कंट्रोल रख पाते हैं। वरना सिर्फ भूख का नाम जो है वो रोज़ा नहीं है, सिर्फ प्यास का नाम रोज़ा नहीं है। रोज़ा, जैसा कि मौलाना ने इससे पहले बताया कि गीबत, एक दूसरे के ऊपर तोहमत और एक दूसरे की बुराइयाँ, यानी एक तरबियत, नफ्स की तरबियत का एक माहौल जो है वो रमज़ान के अंदर खुदावंद तबारक व तआला ने जो है वो पैदा करने की जो है वो ताकीद फरमाई है। और यही रोज़े का अहम तरीन मकसद है कि इंसान अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना सीखे। और अगर इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल करना सीख लेता है तो फिर वो गुनाह की तरफ भी जो है वो आसानी से नहीं जाएगा। इंसान गुनाह की तरफ जाता इसीलिए है कि वो उसके अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। डॉक्टर फराज साहब, मैं आपको सिर्फ इसलिए इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ कि आप डॉक्टर हैं, आप हमारी एक नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, वो किस अंदाज से सोचती है। ये माह रमज़ान में नौजवान जो हैं उनके लिए आप किस तरह इस रमज़ान को देख रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें जो मौलवी साहब ने बताई अभी कि आदमी अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, और गुरुजी ने भी जैसे बताया उपवास और रमज़ान और रोज़े का मतलब। तो जो मैं अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स सर्कल में देखता हूँ, वो इस बात को अब समझने लगे हैं कि रोज़ा सिर्फ यही नहीं कि हम खाना खाने से दूर रहें, हम सिर्फ पीने से दूर रहें, हम सिर्फ अपने नफ्सियात पे कंट्रोल रखें, बल्कि ये कि हमें हर बुरे काम से रुकना है, हर टोटल कंट्रोल। दिस मीन्स टोटल कंट्रोल। एंड नाउ पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, कौम हमारी समझने लगी है, स्पेशली यंग जनरेशन, कि हमें अब किस तरफ बढ़ना है और कैसे अपने आप को मैनिपुलेट करके चलना है ताकि हमारे आइंदा आने वाला जो वक्त है वो अच्छे से गुजर सके। तो दिस बिकम्स एक तरह का प्रैक्टिस बन जाता है 1 महीने का, ताकि आइंदा 11 महीने हमारे अच्छे से गुजरे, एक इबादत गुजार, एक अच्छा सोशल भक्त बन कर के हम गुजारें, एक अल्लाह का बंदा बन के अपने आप को रखें। और अब मैं समझता हूँ कि नौजवान जो नस्ल है उसको बहुत ज़्यादा अब रहनुमाई की ज़रूरत शायद इसलिए नहीं पड़ती कि हम लोग समझने लगे हैं और हमारे हाथ में सॉलिड जो रहनुमा का जो सोर्स है कुरान और हदीस, वो लोग अब उस तरफ माइल हो चुके हैं, और जो नहीं हुए हैं वो सोच रहे हैं उस तरफ होना का। तो दे हैव देयर ओन सोर्सेज, उनके अपने सोर्स मिल चुका है कुरान और हदीस का, तो लोग उसको पढ़ करके अपनी एक इन्फॉर्मेशन गैदर करके, एक इन्फॉर्मेशन डेटा बना करके थोड़ी सी रहनुमाई लेते हैं ज़रूर हैं, और एक सीधे रास्ते को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने हर चीज़ मौजूद है, ये आपके ऊपर है कि आप अच्छाई की तरफ जाते हैं या बुराई की तरफ जाते हैं। आजकल के टेक्नोलॉजिकल दौर में हमें यहाँ पे वक्फा लेना है। नाज़रीन, मैं यूसुफ निज़ामी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो वक्फे पर हमें लेकर चले जाएँ। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आका की सनाखानी दरअसल इबादत है, आका की सनाखानी दरअसल इबादत है। वरफाना लका जिक्रक वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आका की रमज़ान के हवाले से इस खुसूसी मुज़ाकरे में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। स्वामी दीपांकर महाराज साहब, जब हम हिंदुस्तान में देखते हैं तो यहाँ के माहौल में आपको किस तरह आपस में मेल जोल ये रमज़ान के महीने में दिखाई देता है? हर 3 महीने बाद नवरात्र आते हैं। एक नवरात्र कभी 8 होता है, कभी 9 होता है और कभी 7 भी हो जाता है। बिल्कुल। अगर जो इसको 4 बार जोड़ दिया जाए तो ये जाकर 30-31 पर रुक जाता है। और रमजान के दिन कितने होते हैं? 30 बराबर। फिर इससे आगे बढ़ता हूं, एक शब्द है योग। एक योग वो जो हम लोग करते हैं 21 जून को, जिसको यूनाइटेड नेशन ने पास किया। एक योग वो जिसको कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं ही योग हूं।
मतलब कि योग में एक योग ऐसा भी बनता है जिसमें आप खुद से मुखातिब हो जाते हो कि योग इज नॉट जस्ट अ वे टू हेल्थ, योग मीन्स टू यूनाइट एंड बी वन विद द सेल्फ। अर्थ कहने का यह है कि चेंज योर फोकस, रिटर्न टू योर सेल्फ। लौटना खुद पर ही पड़ेगा, अलावा खुद के कोई दूसरा चारा नहीं है। रही बात मेल की, तो मेल में मुझे इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई शब्द नहीं लगते कि जहां बुल्ले शाह कहते थे कि आज खेलूंगी होली रसिया कह बिस्मिल्लाह, और जहां अमीर खुसरो कहते थे कि छाप तिलक सब छीनो मुझसे नए ना मिलाएंगे। इससे बढ़कर और क्या सूफीज्म हमारे देश में हो सकता है। सोचिए, जब मैं उस सूफीज्म की रूहानियत की बात करता हूं तो रोंगटे स्वतः खड़े हो जाते हैं। अर्थ जब तुम खुद से मिलते हो, रसलीन कहते थे कि दृष्टि क्या बदले सृष्टि बदल जाती है। देखने का नजरिया पाक होना चाहिए। रज़ौला साहब, सब बातें सुनकर ऐसा महसूस होता है कि जो भी खुदा की मखलूक है वो एक दूसरे से जुदा है नहीं, फिर हम ये जुदाई के रास्ते क्यों खोज लेते हैं? देखिए, इस्लाम ने इसलिए रोज़े को जो है उसका जो मकसद और उसके बुनियादी मकासद जो बतलाए हैं, तो इस्लाम भी बतलाता है कि इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है, यानी दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक मादा है और एक रूह है। मादे को हम तक़वियत पहुँचाते हैं खाकर पीकर ख्वाहिशात को पूरा करके, इससे हमारा मादा बढ़ता है, जिस्म बढ़ता है, और हम डंड बैठक ये वो सब कुछ करें जो कुछ है, इससे सब मादा बढ़ेगा। रूहानियत को खाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको पीने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है, उसको ज़रूरत होती है। अब हमारी 11 महीने में जब हम ख्वाहिशात की पैरवी करते रहते हैं, पीछे भागते रहते हैं उसके, तो रूहानियत हमारी कमज़ोर हो जाती है और हैवानियत बढ़ जाती है। जो मादा जिसको हम कह रहे हैं वही हैवानियत है। तो हैवानियत और रूहानियत ये दो चीज़ें इंसान के, हर इंसान के अंदर मौजूद हैं। ये रोज़े का महीना हमें इसलिए दिया गया है कि हम अपनी हैवानियत को घटाएं, उसको नियंत्रण करें और अपनी रूहानियत को बढ़ाएं। तो रूहानियत के बढ़ाने का नाम है रोज़ा, सौम। तो जब हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक सिफत पैदा होती है जिसको कहते हैं तक़वा। तक़वा एक ऐसी सिफत है जिससे इंसान के अंदर ऐसी शक्ति क़ुव्वत पैदा हो जाती है जिससे बड़ी से बड़ी बुराई से वो अकेले लड़ सकता है। और बड़ी से बड़ी कष्ट की चीज़ हो लेकिन इंसानियत के लिए, रूह के लिए मुफीद है वो, तो उसको हासिल कर सकता है वो। इस क़ुव्वत का नाम है तक़वा। और इसी को कुरान ने कहा लअल्लकुम तत्तक़ून, कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो ये तक़वा के हुसूल के लिए, तक़वा के हासिल करने के लिए ही रमज़ान का एक महीना हमें दिया गया है कि हम अपनी रूहानियत को जो कमज़ोर हो गई है इसको मजबूत करें, कवी करें। जैसे कुछ महीने हैं जो बहुत ही मोहतरम महीने हैं जिनमें जंग व जदाल और इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जब हम अपने बहुत से इस्लामी ममालिक की जानिब देखते हैं तो वहाँ लोगों की मुश्किलों में, परेशानियों में कमी नहीं आ पा रही है। कुछ इलाकों में कहा कि भाई रमज़ान को देख के जो है सीज़ फायर कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, इस तरह की बातें भी होती हैं, लेकिन जिनको करना चाहिए वो नहीं रोकते हैं। तो इसको कैसे संभाला जा सकता है? माह मुबारक रमज़ान कितनी अज़मतों का हामिल है, ये अगर सही तौर के ऊपर अगर हम समझ लें तो शायद हम इस तरह की कोताहियाँ जो है वो न कर पाएँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि लोगों को अगर ये पता चल जाए कि माह रमज़ान में क्या कुछ है इंसान के लिए, तो वो ये तमन्ना करेंगे कि साल भर जो है वो ये माह मुबारक रमज़ान जारी रहे। वाह। तो बहरहाल अब सियासत में बहुत ज़्यादा वारिद न हो के, देखिए कमी जो है वो ख़ुद हमारी ही है। रोज़ा जिस मकसद के लिए फ़र्ज़ किया गया था लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे मौलाना ने अभी बयान फरमाया, ये हदफ है रोज़े का। इंसान गुनाहों से अपने आप को महफूज रखे, बुराइयों से अपने आप को बचाए। लेकिन अगर रोज़ा सिर्फ जो है वो सो के गुजारा जाए, रोज़ा किसी तरह से तफरी के दीगर असबाब के अंदर जो है वो दिन भर गुजार दिया जाए, तो वो रोज़े की मानवियत उसके अंदर हासिल नहीं होती, उसकी रूह को जो है वो परवान नहीं चढ़ पाती।
रूह परवान उसी वक्त चढ़ती है कि जब इंसान माह मुबारक रमज़ान को उसकी पूरी अज़मत के साथ, अपने पूरे वजूद के साथ, रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि आँखों का भी है, रोज़ा कानों का भी है, रोज़ा जो है वो तमाम ख्वाहिशात के साथ जो है, जितनी भी ख्वाहिशात हैं, तो हराम ख्वाहिशात और जिनकी पाबंदी माह मुबारक रमज़ान में आयद की गई हैं, उन सब का लिहाज करते हुए रोज़ा अगर रखा जाए तो वाक़ईन इसका मानवी असरात जो है वो मुरत्तब होंगे। होता यह है कि हम माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होते। मसलन ये इस्तक़बाल माह मुबारक रमज़ान का ये प्रोग्राम है, हम ईद का इस्तक़बाल तो बहुत शानदार तरीके के ऊपर करते हैं, लेकिन माह मुबारक रमज़ान का बहुत अच्छी इस्तक़बाल बात जो कही है है, आपने। जी वो हम उस यानी जज्बे के साथ जो है वो नहीं करते। ईद की खूब खरीदारी करते हैं, सही बात है। हाँ, तो हालांकि हमें माह मुबारक रमज़ान के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए जी, क्योंकि इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है कि हम अपनी रूह को परवान चढ़ाएं, हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए इखलास के साथ जो है वो अमल अंजाम दें। और ये तभी होगा कि जब हम अपने आप को जो है वो गुनाहों से बचाने की वो यानी मशक करेंगे और अपनी रूह को परवान चढ़ाने की फ़िक्र करेंगे। बहुत सही बात की है फजल साहब। ये जो नौजवान नस्ल है जिसका जिक्र मौलाना साहब ने भी किया कि हम खुराफातों से ख़ुद को बचा के रखें। अभी रमज़ान में कुछ ऐसी रातें आएंगी जिसमें हम देखते हैं कि बाइक स्टंट और ये वो इस तरह की चीज़ें भी करते हैं। लोग रातों को अपनी इबादतों तो करते हैं मगर दूसरों की नींद में भी खलल डालते हैं। इस किस्म के जो नस्लें हैं, नौजवान लोग हैं, ये उनको कैसे समझाया जाए? ये जो खुराफात जो शाबान के महीने में होती हैं जिसका जिक्र आपने करा, शब बारात के रात को जो शब कदर में भी शब वो कदर, निकलते हैं लोग, तो इसमें कुछ हद तक गिरावट तो आई है जी, बिल्कुल कमी आई है। और इसमें मैं जो नई नौजवान नस्ल है उनसे अपील करूंगा कि कुरान और हदीस को समझें और उसको पढ़ करके समझें कि ये कुरान इन रातों की वैलिडिटी क्या है, इनकी हकीकतन, अगर ये हकीकतन है तो क्या है और नहीं है तो क्यों नहीं है, और जो हम कर रहे हैं वो क्या वो उससे साबित है, क्या इस रात को मनाना जायज़ है। बहरहाल वो एक अलग मौजू है, हमारे आलिम दीन बैठे हैं, इनके प्रोरोगेटिव है इस पे बात करना। लेकिन मैं बस इतना ही अपील करना चाहूँगा कि जो लोग समझने की अब कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक लोग समझ चुके हैं, जो लोग नहीं समझ रहे उनको हम लोग दावत देते हैं और मैं भी इस काम में लगा हुआ हूँ अपने कई साथियों के साथ कि कुरान और हदीस की तरफ हम लौटें। सुनी सुनाई बातों के ऊपर किताबों में जो लिख दिया गया उनको मानना, उनको उनके हवाले से कुछ सेलिब्रेट करना, ये सब चीज़ें अब हमारे इस्लाम में है नहीं और लोग मेरे ख्याल से इस बात को समझ रहे हैं। दूसरी बात, मैं जैसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, मैं चाहूँगा कि इसमें जो हमारे जो ये एक मैं मैसेज कन्वे करना चाहूँगा आपके ज़रिए से कि जो हमारे मस्जिदों के जो इमाम हैं और जो वालिदैन हैं वो इस बात पर ध्यान दें कि इसको साबित करने की कोशिश करें कि ये सब चीज़ें से ना कोई सवाब का काम है और ना ही इनसे कोई रूहानियत में इजाफा होता है। गालिबन आप लोग मेरे बात से इत्तेफाक रखेंगे। साथ ही साथ इसमें मैं अपील करूंगा आपके चैनल के ज़रिए कि जो हमारे लोकल मस्जिदों के इमाम्स हैं वो कुछ दिनों पहले से इस बात का बेड़ा उठाएं कि हम लोग ऐलान करें, बयान करें, जुमे के रोज़ इस बात का ख़ास ध्यान रखें, सुनी सुनाई बातों पे हम यकीन ना करें। और जो इमाम हैं, जो रहनुमा हैं आज कौम के, उनको चाहिए कि वो हकीकतन, पहले तो बाज़ दफ़ा मैं बहुत माजरत के साथ चाहूँगा कि शायद बहुत सारे लोगों को भी नहीं मालूम कि इसकी हकीकत क्या है। एक सवाब का काम है मनाना, सवाब कर मना के तौर पे मनाया जा रहा है। बाइक निकालना अल्लाह जाने किस सवाब का काम है, स्टंट्स करना, तो ये जैसे बात हो रही थी अभी कि ये इसके ज़रिए हम औरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं एक बात मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि इस स्टंट्स के ज़रिए हम अपनी जान को भी हलाकत में डाल रहे हैं और दूसरों की जान को भी हलाकत में डाल रहे हैं, जो कि ज़रिया सवाब नहीं बल्कि ज़रिया गुनाह है। बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है अगर हम किसी के नुकसान पहुँचाते हैं। अब हम जैसे रमज़ान में दाखिल हो गए हैं तो अब हमारे जो सुबह और शाम कैसे होने चाहिए? इस्तक़बाल रमज़ान का मतलब ये है कि हम एक प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं कि हमें रमज़ान के महीने को गुजारना कैसे है जी। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे को कितने घंटे हमें इबादत में गुजारना है, तिलावत में गुजारना है, कुरान को समझने में गुजारना है, कितने समाज के दुख दर्द जो हैं उनको कम करने में गुजारना है, सदका खैरात, किसी की मदद, किसी का कोई काम है अटका हुआ है और हम कर सकते हैं तो हम करें। तो ये हमें पहले ही कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया है तो अब कर लें, जो कल नहीं कर सके तो जो आज करें, आज नहीं कर सके तो कल कर लें।
لیکن یہ ہے کہ نہ کریں بغیر پلاننگ کے، بغیر کسی پروگرام کے، یوں ہی جیسے گزر رہا ہے تو گزر رہا ہے، تو اس سے اس کی حقیقی معنویت ہمارے اندر نہ پیدا ہوتی ہے، نہ اس کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ رمضان کے تو مخصوص مقاصد ہے، روحانیت کو آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ آپ کا دل برائی کی طرف مائل ہی نہیں ہو۔ راتوں کو تراویح میں قرآن کی تلاوت کس لیے ہے؟ وہ روحانیت ہی کے لیے۔ اب چونکہ قرآن کے معنی مطالب ہم جانتے نہیں، وہ عربی میں ہے اور ہم لوگ ہندی یا اردو جانتے ہیں، تو کم سے کم ایسا پروگرام تو بنائیں کہ دن میں آدھا گھنٹہ ہی صحیح قرآن شریف کے کچھ حصے کو لے کر بیٹھیں گے، پڑھیں گے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان لے کر آیا ہے۔ اس پروردگار نے ہماری ہدایت کے لیے، ساری دنیا کی ہدایت کے لیے ایک کتاب بھیجی، اور ہم نے اس کو اٹھا کر جزدان میں بند کر کے خوبصورت اور عطر لگا کر اور رکھ دیا۔ تو یہ تعظیم نہیں ہے اس کی، یہ ایک طرح کی توہین ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایسی کیا باتیں ہم رمضان میں کر سکتے ہیں جن سے ہماری روحانیت عروج پائے اور ثواب بھی ملے، اور ہمارا جو آس پاس کا ماحول ہے وہ بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت اور بہت اچھا ہو سکے؟ اسے کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ دیکھیں، روزے کی کیفیت کو ہم سمجھیں، روزہ کچھ پابندیوں کا نام ہے، کچھ کرنے کا، کوئی نئی چیز کرنے کا نام نہیں ہے، کچھ پابندیوں کا نام ہے۔ اب وہ پابندیاں بھی جو ہے وہ اپنے پورے یعنی مقاصد کے ساتھ جو ہے ہمارے اگر ہمارے شعور میں ہوں، مثلا روزہ میں انسان بھوکا رہتا ہے، اگر اس بھوک کے اندر ہم اس انسان کی بھوک کو اگر اپنے مد نظر رکھ لے کہ جو بیچارہ غربت کی وجہ سے جو ہے وہ بھوک برداشت کرتا ہے، تو اس کے احساسات، اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک ترحم کا مادہ، ایک دوسروں کے لیے جو ہے وہ ہمدردی کا مادہ جو ہے یہ پیدا کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ خود ایک میسج دیتا ہے کہ ہم اس بیچارے یعنی مسکین طبقے کو، غریب طبقے کو، اس نادار طبقے کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں۔ اگر ہم دقت کریں، سوچیں، تو ہمیں بہت سے پہلو اور بہت سی باتیں جو ہے وہ ماہ مبارک ہم ابھی وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے ناظرین، اور ہم غور کریں گے کچھ سائنٹیفک چیزوں کے اوپر بھی رمضان کے حوالے سے، اور ہم یہ بھی غور کریں گے کہ جو ہمارے آپس کے ڈائلاگس ہیں، انٹر ریلیجن ڈائلاگس ہیں، اس کو بھی کیا ہم اس دوران میں تقویت دے سکتے ہیں جس سے ہم ایک دوسرے مذاہب کے قریب آ سکیں، اس پر بھی غور کریں گے۔ میں درخواست کروں گا یوسف نظامی صاحب سے کہ ہمیں وقفے پر لے چلیں۔ ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، یہ برکتوں کا سبب ہے گمان میں رکھنا، 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 نبی کے نام کا تغرا مکان میں رکھنا، نبی کے نام کا تغرا مکان میں رکھنا، بڑے خلوص سے دشمن بھی پیش آئیں گے، بڑے خلوص سے دشمن بھی پیش آئیں گے۔ کے حوالے سے ہمارے اسٹوڈیو میں آج ایک خصوصی مذاکرہ ہو رہا ہے جس میں کئی اہم شخصیات موجود ہیں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں دیپانکر سوامی مہاراج صاحب۔ سوامی جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں آپ مسلمانوں سے اور آپ ان غیر مسلموں سے جو آپ کے ہم مذاہب ہیں ان سے کیا امید کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں؟ جب ہندو کا ہاں آپ جوڑتے ہیں اور مسلم کا ماں آپ جوڑتے ہیں، اور جب دونوں کو جوڑ دیتے ہیں تب آپ ہم کر دیتے ہیں، واہ، اور بنا ہم کے ہم سفر تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ کیا بات ہے۔ پرتھم دویتیہ میں ایک دو اور مہتوپورن یکش پرشن رکھنا چاہتا ہوں، جیسے کہ صاحب نے کہا کہ طوطے کی طرح رٹنا، میں یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ لگاتار کوئی منتر پڑھ رہے ہیں، رٹ رہے ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ
कुरान रटने की नहीं, समझने की चीज है। ठीक वैसे ही मंत्र समझने की चीज है। एक शब्द तकवा शब्द इस्तेमाल किया था, उसे शास्त्र में कहा जाता है सिद्धि। मतलब जो स्वयं पर सिद्धि या स्वयं के बुराइयों पर सिद्धि पाले, उसे दुनिया में कोई ताकत हरा नहीं सकती। वो अपने से अपने तक पहुंचने का सफर तय कर लेता है। मगर मेरे एक दो मेरी इल्तिजा समझ लीजिए, या क्योंकि एक लंबे समय से मैं इस पर काम करता आया हूँ, नॉइस पोल्यूशन पर, तो मेरा इच्छा है तहसीन भाई, आपके माध्यम से जो हजरात बैठे हैं या जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो इमाम मस्जिद में होते हैं, मेरा उनसे है कि थोड़ा सा जो उसका लेवल होता है, डिसेबल होता है, बहुत ज़्यादा ना रखा जाए, ताकि जैसे कहा ना कि किसी को नुकसान या दुख देना इसका मतलब नहीं है, रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं है। ठीक वैसे ही कि इसकी नॉइस को थोड़ा सा कम रखा जाए, जितनी ज़रूरत हो उतना रखा जाए, क्योंकि कहीं बीमार हो तो वो सो सके, किसी ने इम्तिहान देने हो तो वो पढ़ सके, किसी की तबीयत खराब हो तो वो सुकून ले सके। हाँ, मतलब ये बहुत अच्छी बात कही है, हमने पहले भी इस पर जिक्र किया है रज़ाउल्लाह साहब। हम देखते हैं कि अक्सर हमारे इलाक़ों में लाउड स्पीकर इतनी ज़ोर से, और देखिए अज़ान के औकात हैं उसमें बात समझ में आती है, लेकिन बहुत जगह 1:30 बजे से ही नातें जो है पढ़नी शुरू कर देते हैं लोग, और उसमें माइक के आगे वो आदमी बैठा होता है जिसकी आवाज़ सबसे ख़राब होती है, और वो जो है मुसलसल पढ़ता रहता है, और जब तक के, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर के बाद ठक 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 ठक, हजरात इतने वक्त हो गया, इतना वक्त हो गया। आज के दौर में सबके पास घड़ियां मौजूद हैं, आप अपने फ़ोन पे अलार्म लगा सकते हैं, सब कुछ मौजूद है, तो क्या हम जहां पर मुमकिन है वो इससे परहेज ना करें? करते हम हैं, और इल्ज़ाम इसका इस्लाम को जाता है, वाह, इल्ज़ाम कुरान को जाता है, हदीस को जाता है, रमज़ान को जा रहा है। रमज़ान ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि आप सारी रात जो है लोगों को जगाते रहिए। किसने कहा कि जगाते रहिए? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ एक अजान होती थी, वो भी उस ज़माने में माइक नहीं था, माइक नहीं था, फिर एक बात, सिर्फ एक अजान होती थी, और बहुत ज़्यादा वक्फा नहीं होता था। उसको हदीस में जिक्र किया गया कि ठहर ठहर के 50 आयतें जितनी देर में पढ़ी जाती हैं, इतना वक्फा होता था। आप अंदाज़ा करें, ये रसूल अकरम के ज़माने की बात है। उस ज़माने में कोई किसी भी तरह का, आजकल शोर शराबा कुछ ज़्यादा है, लाउड स्पीकर जो लगा हुआ है उसका जो इस्तेमाल बेजा हो रहा है, इस पर हम तो ये चाहेंगे आपके ज़रिए से, इस चैनल के माध्यम से, कि आप उलमाए किराम के जितने भी हमारे तबक़ात हैं, तंजीमें हैं, मसालिक हैं, इन तमाम के उलमाए किराम की ये गोश्ती कराएं और कहें कि भाई कौन सी दलील से ये जायज़ है शोर शराबा। कोई भी नहीं कहता है कि जायज़ है, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जी तहसीन भाई, जिस दिन आप ये गोष्ठी रखेंगे मैं उस गोष्ठी में शामिल रहूंगा। ना सिर्फ ये कि आप मस्जिदों से लाउड स्पीकर ब्रिंग डाउन करें, इसका ताल्लुक मैं तकरीबन खुद नहीं तो 50 मंदिरों से मैंने ब्रिंग डाउन किया, और यकीन मानिएगा तहसीन भाई, शुरुआत मैंने अपने आश्रम से किया। हालांकि वो बसता नहीं था, पर उतार इसलिए दिया कि कोई ये ना कहे कि स्वामी जी अपने पर लगाए हो, बाकी को बताए हो। तो इसी कारणवश मैंने अपने लाउड स्पीकर ब्रिंग डाउन किया। इसी चर्चा को लेकर मैं दारुल उलूम मोहतमीन है अब्दुल कासिम नोमानी, उनसे हमारा मिलना हुआ, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया और पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। और मैं ये जानना चाहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में शोर करना, और लाउड स्पीकर का कौन सा धर्म है भाई? हाँ। जैसे कि अभी साहब ने कहा कि उस समय में लाउड स्पीकर होता ही नहीं था, तो आज व्हाट्सएप है, मैसेजेस हैं, मतलब जब घाना की सरकार ये कर सकती है, तमाम यूरोपियन देश कर सकते हैं, और तमाम यूरोपियन देश में भी जो हजरात हैं वो यहां से हैं 90%। जब ये वहां जाकर के बात वो करें जो वो चाहें, तो यहां पर वो चीज क्यों ना हो जो देश और मुल्क के फेवर में हो, स्वास्थ्य से हो। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन। मुझे तकवी साहब देखिए, एक ना खुलूस और अखलाक जो है वो, जो हम दूसरे मज़ाहिब के साथ, अपने मुल्क के शहरियों के साथ, आपस में पूरे समाज मुआशरे के साथ मिलकर हम जो एक पैगाम दे सकते हैं अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, तो वो क्या ये रमज़ान में हमारे लिए एक मौका नहीं है वो साबित करने का?
دیکھیے روزہ تو واقعاً خلوص اور اخلاص کے امتحان ہی کا نام ہے. دیکھیے ماہ مبارک رمضان میں انسان یہ بھی کر سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر سے چھپ کے پانی پی لے, لیکن وہ نہیں پیتا, یعنی حالانکہ کر سکتا تھا وہ لیکن نہیں کرتا. تو یہ کس بنا کے اوپر نہیں کرتا, وہ اخلاص ہی کے بنا کے اوپر. یہ تو ایک اکیلا ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ اور اس کے درمیان کا ہی اللہ معاملہ اور ہے. اس کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے یہ. تو بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ انسان کی جو مثلاً خوبیاں ہیں وہ تقوی الہی کے ذریعے سے جو ہے وہ سجتی ہیں اور ظاہر ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک بہترین مہینہ ہے کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں. دیکھیں صدقہ اس ماہ مبارک رمضان میں دینے کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں صدقے کے سلسلے میں, تو صدقہ یعنی غریب کی مدد کرنا. تو غریب تو وہ چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کسی بھی مذہب سے اور کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, باعث ثواب ہے. تو بہرحال ماہ مبارک رمضان جو ہے اپنے دامن میں بہترین نصیحت جو ہے وہ دوسرے اقوام کے ساتھ برتنے کی جو ہے وہ تاکید کرتا ہے. اور یعنی ماہ مبارک رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں, اور ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر صدیوں سے ایک ماحول چلا آ رہا ہے, گنگا جمنی تہذیب جسے ہم کہا جاتا ہے. یہاں بہت سے جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے ہیں, بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں, ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں, اور دوسرے کے روزے کا احترام جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور مثلاً اب وہ چیزیں جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہوٹلوں کے اوپر پردے لگ جایا کرتے تھے, تو جو بزرگ ہمارے بتاتے ہیں کہ اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا, اور یہ اسی وجہ سے ہوتا تھا کہ کچھ لوگ زبردستی ہوٹل بند کرواتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. دیکھیے زبردستی تو کسی بھی طرح سے کوئی بھی بات صحیح نہیں ہے. تو بہرحال وہ بالکل غیر اسلامی ہے. اور جہاں تک اذیت دینے کا تعلق ہے, یہ تو اور بہت بری چیز ہے کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے مصیبت بن جائے. دیکھیے روزے میں ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان عام طور کے اوپر جب بھوک اور پیاس میں مبتلا ہوتا ہے تو چڑچڑا ہو جاتا ہے. یہ چیز نفسیاتی طور کے اوپر آتی ہے. اس چڑچڑاہٹ پہ قابو پانے کا تو نام روزہ ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. کہ انسان جو ہے وہ نارمل رہے اور یعنی اپنے آپ کی اپنی بھوک کے اوپر قابو پائے, نہ یہ کہ صرف بھوکا رہے, بھوک کے اوپر قابو پائے, اور یعنی اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھے, تبھی صحیح معنی میں. روزے میں شوہر تو بہت زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے اگر اس کی پسند کی افطاری نہ بنی ہو. نہیں, چڑچڑی تو جو ہے شوہر ہی نہیں بلکہ زوجہ بھی ہوتی ہے, لیکن زوجہ بیچاری اس کا اظہار نہیں کر پاتی. اچھا, ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے. فیاض صاحب, آپ تو نوجوان ہیں, اور جو بات ابھی ہوئی ہے اس میں ابھی بھی آپ امام صاحبوں سے ہی کہیں گے کہ وہی یہ سب کچھ کریں, یا آپ لوگوں کے اپنے واٹس ایپ گروپس وغیرہ ہیں نوجوانوں کے, اس میں بھی آپ جو ہے اس طرح کی جو ہے تبلیغ کریں کہ ہم اپنے رمضان میں جو ہے لوگوں کو ایسی چیزیں نہ کریں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. ٹرانسفارمیشن دیکھنے کو مل رہا ہے, تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے. شروعات جیسے گرو جی نے فرمایا کہ شروعات تو کرو, آگے ایک ریولیوشن اپنے آپ بنے گا. جیسے کہ نا ہم مل جائیں تو ایک ریولیوشن بن جاتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دینے کی کوشش کروں. زکوٰۃ کا ذکر یہاں ہوا نہیں رمضان کے حوالے سے, صدقہ فطرہ کا ذکر ہو چکا کہ ہم زکوٰۃ, ایک آدمی کو اگر میری کچھ زکوٰۃ نکلی تو میں ڈیوائڈ کر کے اس کو 10 لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں, وہ اگلے بار 10 کے 10 پھر میرے پاس آئیں گے زکوٰۃ لینے کے لیے. تو میں یہ کوشش کروں کہ میں 10 لوگوں کی مدد نہ کروں, میں ایک کی مدد کروں, تاکہ اس 10 کی لسٹ میں سے ایک تو ہٹے, اگلی بار وہ اور میں مل کر کے 9 کی مدد کریں. واہ, بہت اچھی بات. یہ ٹرانسفارمیشنل چینج سٹارٹ ہو چکا ہے. میں نے اپنی ذات سے شروعات کری ہے. میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بات کی شروعات کریں. زکوٰۃ سب کو نہ بانٹیں, ایک کو دے دیں, اگلی بار اس کو زکوٰۃ دینے والا بنا دیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی مسجدوں کے اندر افطاری کا انتظام ہوتا ہے. اب ہر کوئی چاہے گا کہ میرے گھر سے افطاری بہت اچھی سے اچھی جائے. نہیں بھائی, میں سب کو افطار کرانے کے, اگر افطار کرانے سے مطلب ہے اس وقت, ہمیں یہ مطلب نہیں کہ ہم سب کا پیٹ ابھی بھر دیں. ہم اتنی افطاری بھیج پائیں کہ ہم سب کے جو ہے تھوڑا تھوڑا مدد سب کی کر پائیں اس میں. یا اگر میں کسی کے گھر, جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا دھیان رکھیں, تو میں پڑوسی گھر اگر میں کچھ بھیج رہا ہوں تو اتنا تو بھیجوں کم سے کم کہ میں وہ اپنا افطار ٹھیک سے کر لے, کہ اس کے پاس پھر کسی اور کی افطاری کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ سب چیزیں چل چکی ہیں, چل رہی ہیں.
these are already going on. मतलब फोकस्ड वे में जो है काम जी, होना जी, चाहिए जी। जितना और भी ये है। शुरू हो चुका है बिल्कुल भाई, सही बात इस बात काम शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी बात है, अभी बहुत छोटे लेवल पर है लेकिन काम शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का मैं गुजारिश करूंगा यूसुफ निज़ामी साहब से कि हमें वक्फे पर ले जाए। लब पे सल्ले अला के तराने अश्क आंखों में आए हुए हैं, लब पे सल्ले अला के तराने अश्क आंखों में आए हुए हैं, लब पे सल्ले अला के तराने अश्क आंखों में आए हुए हैं, ये जलवा फिजा के रही है, ये जलवा फिजा के रही है, आका तशरीफ लाए हुए हैं, ये जलवा फिजा के रही है, आका तशरीफ लाए हुए हैं, जिनकी खातिर ये आलम बनाया, अपने घर जिनको रब ने बुलाया, जिनकी खातिर ये आलम बनाया, जिनकी खातिर ये आलम बनाया, अपने घर जिनको रब ने बुलाया। खुसूसी मुज़ाकरे में हमारे दरमियान अहम शख्सियात मौजूद हैं। अब हम ज़रा बात करेंगे थोड़ा सा किस तरीके से सहरी और अफ्तार होना चाहिए। डॉक्टर साहब, सहरी में बहुत खा लेना और या अफ्तार में बहुत खा लेना, देखिए एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि मैं सहरी में जब खाऊं तो इतना खा लूं कि मेरे अगले 16-17 घंटे तक ये चल जाए। ऐसा नहीं है, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है बॉडी उतना ही उसको यूज़ करती है। मसलन अगर मैंने 3 रोटी खा ली तो अब ये 3 रोटी ये नहीं कि मेरे 3 रोटी अगले 17 घंटे तक चलेगी। बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना फ़ौरन ही इस्तेमाल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो एक्स्ट्रा खाया वो फैट की शक्ल में डिपॉजिट हो जाता है बॉडी के अंदर। तो इसलिए एक गुजारिश है कि इतना ना खाएं कि पेट भर लूँ मैं, अगले 17 घंटे तक मुझे खाना नहीं है तो मैं अभी तक उसका ज़ख़ीरा जमा कर लूँ। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बॉडी को अपना ज़रूरत होती है। कहावत है कि मुसलमान रमज़ान में बहुत खाता है। जी बिल्कुल, ये कहावत तो हकीकत है। हकीकत है, ऐसा क्यों होता है जबकि इस महीने मैंने में कहा तो ना, कम खाना चाहिए। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है अच्छा। कि मैं अगले 17 घंटे के लिए अभी भर लूँ पेट में। ऐसे ही अभी थोड़ी देर पहले मैं मरीज देख रहा था, उनका बड़ा अच्छा जवाब था कि पकौड़ों के बगैर तो दस्तरखान सजता ही नहीं है, जबकि हमारे रसूलुल्लाह ने अपने पेट पे पत्थर भी बांधे हैं वक्त पे। तो ये कहना कि अब मैं, जैसे कहते हैं कि अब रोज़ा इफ्तार का वक्त हुआ तो फौरन ही इतना खा लिया जाए कि मगरिब की ख़त्म हुई और इशा का वक्त हो चला, लेकिन अभी हमारी इफ्तारी ख़त्म नहीं हुई है। तो ये भी ज़रूरत नहीं है। उस वक्त थोड़ा सा लगता है, जैसे जैसे मौलवी साहब ने फरमाया कि अपनी नफ्स पे काबू रखना, भूख पे काबू रखना, प्यास पे काबू रखना। ज़रूर जाहिर सी बात है 17 घंटे के बाद शिद्दत महसूस होती है, प्यास की ज़्यादा महसूस होती है इन दिनों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोल्ड ड्रिंक्स पे कोल्ड ड्रिंक्स पिए जाएँ, हम लोग शरबत पे शरबत पिए जाएँ। जितनी ज़रूरत है उतना पानी पिए, उतना एक्सेस में ना पी लें कि फिर हमारा मूवमेंट भी मुश्किल हो जाता है। ये भी देखा गया है, कई बार लोग इतना पेट में पानी भर लेते हैं, इतना फिर खाना खा लेते हैं। आई गेट पेशेंट्स के क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं उनको। क्यों? क्योंकि एक वक्त में, क्योंकि मिकदार तो उतनी है स्टमक की, पेट की, मैदे की मिकदार तो उतनी ही है जितना वो खा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि दिन भर की भूखे रहते हैं, दिन भर रोज़ा रखते हैं, पानी नहीं पीते, एक हवस सी हो जाती है कि अब मैं ये भी खाऊंगा, मैं ये भी खाऊंगा, मैं ये भी खाऊंगा, जो देखता हूँ बाजार में ये रख लो इफ्तारी में काम आएगा। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, उसी का नाम रोज़ा। रज़ुल्लाह साहब, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। दस्तरखान पर इफ्तारी में क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, शरई नुक्ता नज़र से अगर आप देखें तो दस्तरखान पे हमारे चंद खजूरें, 1 गिलास पानी, इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शरई तौर पर सिर्फ इतना ही, और यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, सहाबा किराम का मामूल था। अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो बाकी जो फैट बन जाता है, देखिए रमज़ान के महीने में कुदरत ने वो रखा है तिब्बी नुक्ता नज़र से, जो फैट हमारा जमा रहता है रमज़ान में, वो सारा स्टोर जो रहता है वो सब निकल निकल के काम आता रहता है और फिर हम डोल बन जाते हैं। इसलिए रखा है ये रमज़ान का महीना और खाने पीने की ये पाबंदी जो रखी है कि आपके जिस्म के एतबार से भी आपको मजबूत बनाया जाए। कुछ लोगों को ऐसा हमने पाया है कि रमज़ान में उनकी सेहत निहायत काबिल रश्क हो जाती है, और जब उनसे पूछा गया कि भाई इसका राज क्या है,
शुगर है आपको और आप रोज़े रख रहे हैं और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। कहा कि भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 महीने में रमज़ान का महीना निहायत ही बेहतर गुजरता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता और सेहत हमारी अच्छी हो जाती है। वजह ये कि वही मामूल के मुताबिक, जो मामूल है शरई, उतनी ही वो ग़िज़ा लेते हैं अफ्तार में, उतना ही सहरी में। मौलाना मोहसिन तक़वी साहब, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? अगर रोज़ा हम सिर्फ इस बिना के ऊपर रखें कि हमारी एक मजबूरी है, एक मुस्लिम माशरे में रह रहे हैं लोग, हम रोज़ा नहीं रखेंगे तो लोग कहेंगे कि रोज़ा नहीं रखा इन्होंने। अगर इस बिना के ऊपर इंसान रोज़ा रखेगा तो जाहिर है कि उसका अजर व सवाब जो है वो कुछ नहीं है। रोज़ा सही माना में उसी वक्त है कि जब लज्जत सौम इंसान जो है वो महसूस कर सके। एक आलिम दीन है शहीद मुताहरी, उन्होंने फरमाया यानी मिजाहिया अंदाज के अंदर कि वो लोग जो माह मुबारक के रमज़ान में सिर्फ सो के वक्त गुजार देते हैं, अगर अजर व सवाब मेरे हाथों में हो तो मैं उन्हें बिल्कुल न दूं कुछ भी क्योंकि इन्होंने उस रोज़े की लज्जत को हासिल किया ही नहीं है। तो रोज़ा यानी इखलास के साथ और इताअत परवरदिगार की यानी ख्वाहिश के साथ और यानी पूरी तवज्जो के साथ, पूरे वजूद के साथ रोज़ा सही माना में रोज़ा है। वरना सिर्फ पेट भर लेना ज़रूरत से ज़्यादा, और जिसके बहुत से नतीजे भी जो है वो सामने आते हैं नुकसानदेह, ये रोज़ा सही माना में रोज़ा नहीं। जो शुगर वगैरह के मरीज़ होते हैं उनके लिए क्या कुछ इस तरह के तंबीहात हैं जिनसे वो शुगर में भी रोज़ा रख सकते हैं? जी, शुगर के मरीजों को रोज़ा रखने की इजाज़त है और बहुत सारी स्टडीज़ जिसके मैं भी पार्ट रहा हूँ, ये हमने करी हैं कि इस जैसे मौसम ने बताया कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिलता है आफ्टर रमज़ान के बाद हम जब स्टडी करते हैं तो। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुम्हें किसी भी चीज़ में परेशानी में नहीं डालना चाहते। तो बहुत सारे से शुगर्स के डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं जिनकी ग्रॉसली शुगर अनकंट्रोल रहती है डिस्पाइट मैक्सिमम ट्रीटमेंट, यानी कि उनको इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है और 4-4, 5-5 तरह की दवाइयाँ उनको खानी पड़ती है, तब शुगर कंट्रोल होती है। तो ऐसे लोगों से मेरी अपील रहेगी कि अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर रोज़े ना रखें। रखने की इजाज़त मिल सकती है अगर उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स इंसुलिन को और दवाइयों को थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, उसके बाद वो रोज़े की हालत में इंजेक्शन ले सकते हैं? मैं वो बता रहा हूँ कि रोज़े की हालत में इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इंसुलिन के बाद आपको फ़ौरन कुछ भी खाने की ज़रूरत होती है। सहरी से पहले इंसुलिन लगा करके रोज़ा रख सकते हैं, मगर उसकी डोज अकॉर्डिंग टू शुगर और अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट वो डॉक्टर सेट करते हैं। इसलिए मैंने कहा जिनको इंसुलिन और 4-4, 5-5 तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं उनको ज़रा एहतियात की ज़रूरत है। जिनकी शुगर ग्रॉसली डिरेंज नहीं रहती, थोड़ा सा ही जिनकी शुगर डिरेंज रहती है और एक आधी कोई तरह की मेडिसिन खाने से या बहुत माइल्ड डोज खाने से उनकी शुगर्स कंट्रोल रहती है, वो कन्वीनियंटली डॉक्टर से पूछ करके अपनी डोज को एडजस्ट करके रोज़ा रखने की इजाज़त उनको मिल सकती है। मगर उनको ये इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपनी शुगर्स को वॉच रखें, ध्यान रखें उनका, और अपने खाने पीने पे ज़रा कंट्रोल रखें। बिल्कुल सही बात है। जो मरीज़ हैं वो अपने डॉक्टर से पूछ कर ही, उनके मशवरे के बाद ही रोज़ा रखें, और इस दीन में कोई ज़बरदस्ती है नहीं। दीपांकर साहब, बिल्कुल आखिर में अब मैं आपसे पैगाम दिलवाना चाहता हूँ अपने नाजरीन को, वो हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, आप उन दोनों से क्या कहना चाहते हैं कि रमज़ान के महीने में कुछ ऐसा करें कि जिससे अगले 11 महीने भी इस मुल्क के लिए बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकें? बेसिक तहसीन भाई, महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर साहब ने भी कही, हजरात ने भी कही, मगर मैं इनकी बात से बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि साइंस की स्टडी है, जब आप उपवास या रोज़ा या रमज़ान आप जो भी करते हैं, जब आप उसको बहुत तरीके से करते हैं तो वो आपके लिए अमृत का काम करता है। वाह। आप समझ लीजिए कि मतलब आप स्वयं तक पहुंचने के लिए स्वयं एक स्टेप चलते हैं, चाहे दूरी 1000 किलोमीटर की हो, मगर कदम पहला उठाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। बहुत मुबारक महीना है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज़ के साथ कि आप ना कि सिर्फ इस एक माह में, इस एक माह से इतनी ऊर्जा लें, इतनी ताकत लें कि आगे आने वाले रमज़ान तक आप इसी तरह से रहें। जैसे एक सूफीज़म में शब्द होता है कि महफिल, एक पंजाबी का शब्द, महफिल मस्तानी। आप मस्ती में जिए ना, आप उदास, निराश, हताश ये नहीं होता। आप मस्त रह करके कि जब आपको होश ही ना रहे कि मुझे कुछ खाना है, तब उपवास है। रम जाइए उसमें, रम जाइए।
جو लॉ लगा लीजिए बेसिकली, जो हमारे यहाँ कहते हैं नाज़रीन, दीपांकर स्वामी साहब के बाद अब कहने के लिए, मेरे कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। और हम आज इस इस्तक़बाल रमज़ान का ये जो प्रोग्राम है इसको यही इख्तिताम दे रहे हैं। लेकिन हमने रमज़ान के हवाले से यहाँ पर जो कुछ भी बातें हुई हैं, हम देखिए, हम बहस इस तरह से नहीं करते कि जिसमें चीख चिल्लाहट हो। जब हम इस तरह की बातें करते हैं जिसमें गौर व फिक्र के रास्ते निकलते हैं, तो यकीनी तौर पर उसमें सबका फ़ायदा होता है। जो कुछ यहाँ पर बातें हुई हैं उन पर गौर कीजिएगा, फ़िक्र कीजिएगा और उनको अपने अमल में ढालने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके आसपास का माशरा जो है वो खूबसूरत बन सके, हम सब के रहने लायक बन सके, और हम भी कह सकें कि देखो, हम इस खूबसूरत मुल्क में रहते हैं जहाँ लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। यही सबका साथ, सबका विकास है। मैं अब दरख्वास्त करूँगा यूसुफ निज़ामी साहब से कि इस मुज़ाकरे का इख्तिताम अपनी खूबसूरत आवाज़ से करें और हम सबको इजाज़त दीजिए। आदाब। नबी के रोजे को चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, तो मुझ पे साया करम का होगा, कभी इधर से कभी उधर से। करूंगा जब मैं तवाफ काबा, तो वो दिखाएंगे अपना जलवा। करूंगा जब मैं तवाफ काबा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। करूंगा जब मैं तवाफ काबा, तो वो दिखाएंगे अपना जलवा। नबी का दीदार मैं करूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। इधर हो काबा इधर मदीना, या रसूल अल्लाह या हबीबी। इधर हो काबा इधर मदीना, ये होगा अंबर मेरा करीना, ये होगा अंबर मेरा करीना। मैं भीख दोनों तरफ से लूंगा, कभी इधर से